रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। हमने कहा था that V is equal to IR where R is the resistance, so resistance equation became R is equal to VI. Putting the units of V is equal to volt and the unit of current is equal to ampere. So volt per ampere is equal to ohm. So ohm is the unit of resistance, or we represent it by omega. So this is called ohm. Ohm is the unit represented by or omega. Now the next is the opposite of resistance. So the opposite of resistance is what? Conductance. So conductance is represented by G. So here G is conductance and it is opposite of resistance. The unit of G, so the unit of G is equal to G is inversely proportional to resistance, so it is equal to 1 over ohm or per ohm. So the unit of conductance is per ohm, or it is also called 1 over ohm is equal to mho, mho. So the conductance unit is also mho, ohm per, and another unit of conductance is we call it Simon. So Simon is also the unit of conductance and it is represented by the letter S. Now there was term which we called it resistivity. R is equal to rho L divided by A, where rho is called resistivity. So rho is equal to R A divided by L. R A divided by R is equal to rho L divided by A. So next rho is equal to R A divided by L. Now this was resistivity. Now same, this is resistance, this is resistivity. So we have another term in case of conductance, we call it conductivity. And conductivity is opposite of resistivity. So the equation for resistivity is, we know that R A divided by L, R A divided by L. So for conductivity it will become L divided by R A. So L divided by R A is the equation of conductivity, and for resistivity the equation is R A divided by L. Both are opposite of each other. Next, the unit of conductivity. So this is conductivity. So this is continuity. So to find its unit, so we know that conductivity is equal to what? This is L. So we will put, instead of L we will put meter. Rho is equal to omega and A is equal to meter square. So meter cancel with meter. So per ohm, omega per meter is the unit of what? Conductivity. R 1 over ohm is equal to Simon or mho. So it will become mho per meter, or it will become what? Mho per meter. So this is also the unit of what? Conductivity. Next, 1 over resistance. So this is again in the formula we know that for conductivity equation is L divided by R A. So 1 by R is equal to what? This is 1 resistance, and 1 over resistance is equal to conductance. So the conductance unit is what? Mho R per ohm meter. So 1 over R is equal to conductance. So we can also write GL divided by A. So the unit of G is Simon, meter per meter square. So meter cancel with meter. So Simon per meter is the unit of conductivity.
The next is temperature coefficient of resistance. Now consider a resistance of which resistance is R naught at 0 degree C. At T temperature its resistance is T degree C. So we know that with the increase in temperature the resistance also increases. So resistance increases when temperature is increases. So there will be change occur in resistance. So the change is delta R is equal to, अब ये जो चेंज आया है ये चीज़ किस चीज़ के बराबर है, ये चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ओरिजिनल टेम्परेचर आर नॉट. नेक्स्ट ये डेल्टा आर जो जितना चेंज आएगा ये किस चीज़ के मुताबिक होगा, ये बराबर होगा चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है. जितना ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू व्हाट, change in temperature. So joining these equation we will get delta R is equal to R naught T, or putting constant we will get delta R is equal to alpha R naught T. Now delta R क्या है, initial final minus initial, so RT minus R naught is equal to alpha R naught T, or we can also write that RT is equal to R naught plus alpha R naught T. Taking R naught constant we will get R naught is equal to 1 plus alpha T. So this is the equation for to find the temperature at that value. So this was for resistance. इस तरह हम resistivity के लिए भी इक्वेशन लिख सकते हैं. लाइक इन केस ऑफ resistivity इक्वेशन, resistivity at T temperature, resistivity at original temperature, 1 plus alpha change at temperature at ये वाला temperature, final temperature. Now for example एक एग्जाम्पल बुक में गिवन है that a transmission line made of copper has resistance of 100 ohm at 0 degree C. So we have 100 ohm at what, 0 degree C. तो ये हो गया R naught. R naught क्या होता है, resistance at 0 degree C. Next calculate the change in resistance. Find करना है क्या, delta R between summer and winter, knowing that temperature varies from 35 degree C to what, minus 30. So टेम्परेचर क्या है, प्लस 35 से 0 से गुजरता हुआ आया है माइनस 30 डिग्री सी को. नेक्स्ट एज्यूम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ कॉपर टू बी द, सो जो कांस्टेंट दिया हुआ है वो हमारे पास है 0.00427 फॉर डिग्री सी एट 0 डिग्री सी. सो हमें आर नॉट गिवन है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए आर टी. सो डेल्टा आर हमारे साथ किस चीज़ की बराबर है, आर टी माइनस आर नॉट. सो वी नो डेट डेल्टा आर इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट. सो ये हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. डेल्टा आर हमें चाहिए, सो हमें चाहिए आर टी. आर टी मतलब टेम्परेचर गिवन है, सो आर नॉट भी गिवन से, सो ये पॉइंट करके माइनस कर सकते हैं. नेक्स्ट हम ये इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं जो किस चीज़ के बराबर है, बुक में डेल्टा नहीं है लेकिन असल में इस इक्वेशन में डेल्टा हमारे साथ है, चेंज इन टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शन है. सो वी नो डेट डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट टी. सो अल्फा हमारे पास क्या है 0.00427 मल्टीप्लाई बाई आर नॉट हमारे पास क्या है 100 मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर. जितना कितना चेंज आया है टेम्परेचर में, सो टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 35 टू 30. सो एक चेंज ये आया है 35 का और एक चेंज ये आया है 30 का. सो टोटल चेंज कितना है हमारे पास 75. सो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको किस चीज़ में 75 में, और जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट और आंसर इज 27.8 ओमेगा. सो दिस वाज लेंथी वे एंड दिस इज द शॉर्ट. डायरेक्टली फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं. सो दिस वाज यूज ऑफ दिस इक्वेशन. द नेक्स्ट इज वायर वाउंड वेरिएबल रजिस्टर्स. हमारे पास कुछ रजिस्टर्स होते हैं जो क्या होते हैं फिक्स्ड नहीं होते, हमारे पास वो क्या होते हैं वेरिएबल होते हैं, जिसको हम कहते हैं वेरिएबल रजिस्टर. ये हमारे पास अगर फिक्स्ड रजिस्टर है तो ये हमारे पास क्या है, एक एरो लगा कि इसका क्या मतलब है वेरिएबल रजिस्टर. सो वेरिएबल रजिस्टर मेनली किस चीज़ में यूज़ होता है, दो तरीक़ों से यूज़ होता है. एक को हम कहते हैं रियोस्टेट और दूसरे को हम कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर. सो
रियोस्टेट में हमारे पास क्या होता है, एक रजिस्टर लेते हैं लेंथी लोग, सही है, और ये कनेक्ट कर लेते हैं। सो एक कनेक्शन हम यहाँ से लेते हैं और दूसरा कनेक्शन एक पिन होता है जिसको कनेक्ट होता है, दूसरा कनेक्शन यहाँ से लेते हैं। ये हमारे पास एक कनेक्शन होगा, ये हमारे पास दो कनेक्शन हो। सेकंड मतलब ये करंट जो फ्लो करता है ये यहाँ से गुजरता है और रेजिस्टेंस को कोर नहीं करता बल्कि पिन के ज़रिए दूसरे कनेक्शन से जुड़ जाता है। मतलब ये वाला रेजिस्टेंस करंट फेस करता है। तो ये पॉइंट हम राइट और लेफ्ट में ले जाते हैं। सो ये जो पॉइंट है ये मूव कर लेता है। सो जब ये पॉइंट यहाँ पर आ जाता है मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, और जब ये पॉइंट यहाँ पर आ जाता है तो ये रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। सो अगर ये हमारे पास पॉइंट ए हो गया, ये हमारे पास पॉइंट बी हो गया, सो जितना ये पिन ए के करीब आता है मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, और जितना बी के करीब जाता है उतना रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। सो बाय रियोस्टेट वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज व्हाट द रेजिस्टेंस, एंड वी नो दैट V इज इक्वल टू IR or R इज इक्वल टू V डिवाइड बाय I. सो वी कैन से दैट R इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू व्हाट I. सो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शन है किस चीज़ को, करंट को। सो अगर हम रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो करंट हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो अगर हमारे पास ये रियोस्टेट है, अगर पिन यहाँ पर है तो मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है, ज़्यादा है, तो हमारे पास करंट कम होगा, आई विल बी लेस। और अगर हमारे पास एक सेकंड केस है पिन इस पोजीशन पे, तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ पर करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो रियोस्टेट में क्या होता है, रियोस्टेट में हम वेरिएबल रजिस्टर यूज़ कर देते हैं। ये रजिस्टर का मेन एक बेनिफिट है जिसकी मदद से हम रजिस्टर चेंज करते हैं, और रजिस्टर की चेंज की वजह से करंट इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है पोटेंशियल डिवाइडर। सो पोटेंशियल डिवाइडर में हम क्या करते हैं, डिफरेंट पोटेंशियल या डिफरेंट वोल्टेज देते हैं। इसमें हमारे पास इसी तरह का कम्बिनेशन होता है, बिल्कुल एक हमारे पास रजिस्टर होता है, सही है, लेकिन हम एक दूसरा कनेक्शन ले लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, हम एक पिन यूज़ करते हैं। सो ये पिन ऊपर नीचे हम करते हैं। सो यहाँ पर मैं कहूँगा ए, यहाँ पर मैं करूँगा बी। सो अगर ये पिन ए के करीब हो तो इसका मतलब है रजिस्टर क्या है, कम है। अगर ये पिन यहाँ पर होगा मतलब सपोज द पिन इज़ इन दिस पोजीशन, सो ये वाला करंट आकर इसी तरीके से जाएगा। सो इन दिस केस ये सारा रजिस्टर कवर करेगा। और दूसरी तरीके से अगर पिन ए पोजीशन के करीब हो तो फिर क्या होगा, ये करंट आएगा यहाँ से ए से गुजर कर, तो ये रजिस्टर कवर नहीं करेगा या इसमें रेजिस्टेंस मिनिमम होगी। सो अगर ये पिन ऊपर नीचे होगी इसकी मदद से हम वोल्टेज कम या ज़्यादा कर सकेंगे। सो V इज इक्वल टू IR, यानी V का मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेजिस्टेंस। अगर इन केस आप B, अगर B वाला सम यूज़ करें, इस केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वोल्टेज क्या होगी, वोल्टेज भी ज़्यादा होगी। अगर इस पॉइंट ए पर रेजिस्टर कम है तो इसका मतलब है कि वोल्टेज भी कम है। सो एट पॉइंट ए R इज लेस, so voltage is also less. At point B resistance is more, so voltage is also more. So these are the two uses of variable resistance. The first one is rheostat and the second is potential divider. The next हमारे पास है what, thermistor. ये थर्मिस्टर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास हमेशा एक सेमीकंडक्टर होता है। सो सेमीकंडक्टर के बारे में हमको ऑलरेडी पता है कि अगर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। सो एक 0 केल्विन हमारे पास सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये हमारे पास इंसुलेटर होता है। लेकिन जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं लाइक 100 केल्विन फॉर एग्जाम्पल, सो फिर क्या होगा, इसकी रेजिस्टेंस कम होगी और ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा कंडक्टर। सो थर्मिस्टर इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर, और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, वो चेंज होता है टेम्परेचर के साथ। सो ये थर्मिस्टर वोल्ट दो लफ्ज़ों से बना है, एक हमारे पास है टेम्परेचर, एक हमारे पास है
रजिस्टर। सो ये थर्मिस्टर एक रजिस्टर होता है जो टेम्परेचर पर इफेक्ट करता है, जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर की वजह से चेंज हो जाता है। सो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर की वजह से चेंज होता है। सो थर्मिस्टर हमारे पास क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। नाउ टेम्परेचर रेजिस्टर, सो ई टी टेम्परेचर से टी आ जाता है और रजिस्टर से सुई दोनों को मिलाकर एक लफ्ज़ बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, या थर्मिस्टर। ये नहीं है, ये हमारे पास है थर्मल रजिस्टर। सो ये भी पॉसिबल है। सो ये बन जाता है थर और मिस्टर। सो एम यहाँ से आ जाता है और आई एस टी आर यहाँ से। सो थर्मल और रजिस्टर से क्या लफ्ज़ बना है, थर्मल थर्मिस्टर। सो इसकी कुछ खुसूसियात हैं, थर्मिस्टर के कुछ प्रिंसिपल्स है, यानी इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है किसके साथ, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। और दूसरी बात, इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, वेरी हाई है टेम्परेचर। ये कुछ प्रिंसिपल है जो आपको याद रखने होंगे ईटा की दे। नेक्स्ट, ये हाई भी है और दूसरी बात टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। Now, thermistor is made up of semiconductor. Thermistor is made up of semiconductor or oxides of carbon, nickel and cobalt. The three example books में दी है are what? Oxides of iron यानी Fe, nickel and cobalt. So ये तीनों आपको याद करने हैं। Now, they are generally in the form of what? Disc or rods. ये तो हमारे पास या इस तरह होते हैं डिस्क की सूरत में, या हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे रॉड्स होते हैं। सो ये हमारे पास क्या था, थर्मिस्टर। अब थर्मिस्टर की हमारे पास क्या है, फ़वाइद हैं, यानी ये जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है, एनहेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन इट। सो इसी तरह ये हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर, एलसीडी, सीपीयू, जितने पे हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये इनकी सारे की सारे में यूज़ होती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो सिंपली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू V is equal to W divided by Q. So W is the unit of joule, Q unit is coulomb, so the V unit is volt, the unit of V is equal to volt. So एक वोल्ट हमारे पास किस चीज़ की बराबर है, एक वोल्ट हमारे पास बराबर है जूल पर कोलम की। इस चैप्टर के सारे जो टॉपिक है वो सिर्फ एक एक पॉइंट है हमारे साथ। अब ये वोल्टेज या ईएमएफ जो है, इसको हम ईएमएफ भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लाइक ये हमारे पास अगर बैटरी है, इस बैटरी के साथ हमारे दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से आ जाते हैं और पॉजिटिव में ड्रॉप आउट करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल एंड मूव टू पॉजिटिव। अब ये इसका मतलब है कि नेगेटिव इज व्हाट, नेगेटिव इज एट हाई एनर्जी लेवल एंड पॉजिटिव इज लो एनर्जी लेवल, या हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। सो इस वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर की सर्किट में मूव करके पॉजिटिव में आती है, और ये हमारे पास क्या है, एक एनर्जी सोर्स है। बट अब इसको चाहिए एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर फेस्ट करेंगे, या पॉजिटिव सर्कल से नेगेटिव टर्मिनल पर देंगे। सो फ्रॉम लोअर टू पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन इलेक्ट्रॉनों को लोअर से हाई पर लाते, फिर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं। सो अब हमारे पास क्या है, ये बैटरी हमारे पास क्या है, एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है। इस बैटरी के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास केमिकल एनर्जी होती है जो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह हमारे पास ये बैटरीज और सेल हमारे पास सोर्स हो गई किस चीज़ की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। इसी तरह हमारे पास थर्मोकपल भी है। थर्मोकपल क्या करते हैं, थर्मोकपल में हमारे पास टू मेटल्स होते हैं जो जॉइन करते हैं, वो हमने पिछली चैप्टर में आई थिंक पढ़ा था। लेकिन थर्मोकपल क्या करते हैं, ये हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। नेक्स्ट हमारे पास सोलर प्लेट्स भी होती है, या सोलर पैनल भी होते हैं, या सोलर सेल भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इस सन एनर्जी को ट्रैप करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। सो ये लाइट एनर्जी किस चीज़ को कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। दूसरे हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रिकल जनरेटर। इलेक्ट्रिकल
जिसके अंदर मशीन घूमती है, मैग्नेट के दरमियान रिंग्स कपल्स घूमती है, यानी अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किस चीज़ में, वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे कि बैटरीज में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, थर्मोकपल में हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल में, सोलर पैनल प्लेट में लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल में, और जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी के कन्वर्ट हो जाती है किस चीज़ में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। नेक्स्ट इज टर्मिनल वोल्टेज, वो लिखने की ज़रूरत नहीं, वो सिंपली है दैट VT इज इक्वल टू E माइनस IR। जब हम वोल्टेज से IR माइनस करें तब हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज आता है, मतलब EMF इज ग्रेटर देन व्हाट, टर्मिनल वोल्टेज। और VT प्लस IR इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब VT के साथ IR ऐड करें तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बन जाता है। इसका मतलब है कि विदाउट IR VT विल बी लेस देन इलेक्ट्रोमोटिव force. So terminal voltage is always less than what, electromotive force due to inside resistance. ये टर्मिनल रेजिस्टेंस, ये हमारे पास अगर बैटरी है तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर जो वोल्टेज है, अगर हम वो चेक करें तो उस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। सो अगेन अगर हमारे पास ये एक बैटरी है, ये हमारे पास क्या है, एक बैटरी है, सेम ये बैटरी हमने दोबारा ली, लेकिन इस वक्त हमने क्या किया, इसको हमने एक सर्किट से कनेक्ट किया। सो क्या हो जाता है इन दिस केस, एक केस ये है, एक केस ये है। सो इस वक्त अगर हम बैटरी का वोल्टेज चेक करें, जो वोल्टेज वो बैटरी का वोल्टेज है, सो कोई पाथवे ये कवर नहीं कर रही, सो इसका जो वोल्टेज है वो किस चीज़ के बराबर है, EMF की बराबर है। सो द EMF of the battery is the voltage at the terminal of the battery without delivering any current. So जब बैटरी डिलीवर नहीं कर रही करंट तो इसका जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, हमारे पास EMF of the बैटरी होता है। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट हमारे पास है जब ये करंट फ्लो कर रहा है इन दिस साइकिल, सो ये फ्लो बाहर भी कर रहा है और इनसाइड भी कर रहा है। सो इन दिस केस जब इंटरनल रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हो जाती है, जब सर्किट के दरमियान मूवमेंट शुरू हो जाती है, तो इन दिस केस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाती है। सो एक नया फैक्टर आ जाता है जो बराबर होता है, किस चीज़ के बराबर होता है, IR। I इज़ द करंट, R इज़ द व्हाट, इंटरनल रेजिस्टर ऑफ द बैटरी। सो इस वक्त जब बैटरी किसी सर्किट में यूज़ हो रही हो या करंट डिलीवर कर रही हो, तो इस वक्त इसके वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। और इन दोनों वोल्टेज को इस इक्वेशन से हम कम ज्वाइन कर सकते हैं, दैट VT इज इक्वल टू E माइनस IR। इसका प्रूफ है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली याद कर ले, दैट VT इज इक्वल टू E माइनस IR। द नेक्स्ट इज वी नो दैट ऑलरेडी हमने बताया दैट V इज इक्वल टू W डिवाइड बाई Q। नेक्स्ट वी नो दैट व्हाट इज पावर, पावर इज द रेट ऑफ वर्क डन, और P इज इक्वल टू W डिवाइड बाई P is equal to W divided by T। Now यहाँ पर हम V इंटू Q इज इक्वल टू W इस इक्वेशन से लिख सकते हैं, यानी ये W की वैल्यू हम W की बजाय VQ लिख सकते हैं। सो VQ बाई T इज आल्सो द इक्वेशन ऑफ P। सो पावर का एक इक्वेशन आ गया, P इज इक्वल टू W डिवाइड बाई T, मेन इक्वेशन जो है। सो W की बजाय अगर हमने लिख लिया VQ, सो हमारे पास बन जाएगा क्या, VQ डिवाइड बाई T। या हमें ऑलरेडी पता है दैट I इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई T, या Q इज इक्वल टू I T। सो यहाँ पर अगर हम Q के बजाय लगाए IT, सो ये बन जाएगा TT। सो P की बजाय हम लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। सो ये हमारे पास आ गया तीसरा इक्वेशन। नेक्स्ट हम अगर यहाँ पर VQ है या V की बजाय लिख के क्या, ये हमारे पास आ गया P इज इक्वल टू VI, सो V इज इक्वल टू IR, सो IR इंटू I, सो वी कैन राइट I स्क्वेयर इंटू R। सो ये हमारे पास हो गया एक और इक्वेशन। या वी नो दैट V इज इक्वल टू IR, सो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R। सो I के बजाय अगर हम लिखे V डिवाइड बाई R, सो V इंटू V डिवाइड बाई R इज इक्वल टू V स्क्वेयर डिवाइड बाई R। सो दिस इज आल्सो द इक्वेशन ऑफ पावर। सो ये जो फार्मूलाज है ये सारे इलेक्ट्रिकल पावर के लिए यूज़ हो सकते हैं, बट
ओनली इन द केस ऑफ, ये याद रखना कि ये हमारे पास किस सर्किट के लिए, ये हमारे पास डीसी सर्किट के लिए, नॉट एसी सर्किट के लिए। सो ये सारे फार्मूलेस आपको याद रखने हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन P इक्वल W डिवाइड बाई टी। अब W का वैल्यू लिखे, V Q का लिखे, V का लिखे, या P इक्वल टू वी आई। सो V को रिप्लेस करें, फिर I को रिप्लेस करें, सो वी विल गेट ऑल दिस इक्वेशन। नाउ वी नो दैट, यहाँ पर एक यूनिट है किलोवाट आवर्स, सो ये इंपॉर्टेंट है। या वी नो दैट P इज इक्वल टू व्हाट, P इज इक्वल टू वी आई। सो द यूनिट ऑफ V इज वोल्ट, the unit of current is what, ampere. So volt multiplied by ampere is equal to watt, and watt is the unit of what, power. So this was the unit of power. So आगे हमारे पास किलोवाट भी है, मेगावाट भी है, लेकिन वो जस्ट प्रीफिक्स यूज हुए। सो द यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट, वाट, एंड वाट इज इक्वल टू व्हाट, वोल्ट मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर, और वाट इज इक्वल टू P is equal to W divided by T. So W divided by T is equal to joule per coulomb. So joule per coulomb is equal to watt also, ये भी सही है। अगर डायमेंशन की बात की जाए ज़रूरी नहीं है, लेकिन P is equal to W divided by T. So W फोर्स है, सो फोर्स एनर्जी है, जो एनर्जी हमारे जो इजी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन इजीली पॉइंट कर सकते हैं, तो हाफ mv² डिवाइड बाई टी। सो m हमारे पास आ गया m, v इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी। सो एल स्क्वेयर है, एल स्क्वेयर टी माइनस टू, और एक टी है डिवीजन में। सो एम एल टू टी माइनस थ्री इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट, पावर। द नेक्स्ट हमारे पास है किलोवाट पर आवर। हमारे पास क्या है, किलोवाट आवर। सो किलोवाट आवर ये हमारे पास असल में क्या है, ये हमारे पास है किलो वाट पर आवर। सो वी नो दैट P इज इक्वल टू W डिवाइड बाई, ये हमारे पास है किलो वाट सारी, और मल्टीप्लाई बाई में। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट W इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई T। सो P का यूनिट इस केस में क्या है, किलो वाट, और T का यूनिट इस केस में क्या है, आवर। सो किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ वर्क, और वर्क को हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी। सो ये ईटा में हमेशा आता है कि किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ व्हाट, सो किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये किस चीज़ का यूनिट है, एनर्जी। हाँ, अब ये एनर्जी का यूनिट हमने कहा है कि W का यूनिट क्या है, जूल है। सो 1 किलोवाट आवर कितनी जूल के बराबर है। सो वी नो दैट 1 किलोवाट आवर। सो तरीक़ा ये है कि हम SI में लिखे, सो किलो का मतलब 1000 है, सो बन गया 1000 वाट पर आवर। आवर में हमारे पास 1 आवर है, सो 1 आवर में हमारे पास कितनी मिनट होती है, 60 मिनट, और फिर वो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। सो ये वाट में कन्वर्ट हो गया, और ये हमारे पास किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, सेकंड में। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी नो दैट P इज इक्वल टू वाट इज इक्वल टू W का यूनिट जूल है, और T का यूनिट सेकंड है। सो हम लिख सकते हैं कि जूल इज इक्वल टू वाट मल्टीप्लाई बाय सेकंड। सो वाट मल्टीप्लाई बाय सेकंड इज इक्वल टू जूल। सो जूल कितने जूल, 1000 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। सो 1 किलोवाट आवर हमारे पास इतने जूल के बराबर है, या 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। 1 2 3 0 ये हो गई, 1 और 2 ये हो गई। सो 1 2 3 4 5 6। सो 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल इज इक्वल टू व्हाट, 1 किलोवाट आवर। तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर। सो आपको ये रिलेशन याद करना है, और ये याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर किस चीज़ का यूनिट है। सो यूनिट है किस चीज़ का, एनर्जी का। द नेक्स्ट इज हमारे पास है मैक्सिमम पावर आउटपुट। सो मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ये डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम पावर की डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। यानी मैक्सिमम पावर कब होगी, जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगी। आपको क्या रखना है, ये याद रखना है। क्यों, क्योंकि असल जो इक्वेशन है पावर की, वो हमारे पास बराबर है E²R इंटू R माइनस R² प्लस 4RR। सो इस जगह पर अगर हम R की वैल्यू कुछ लिखें, या इस जगह पर R की कुछ लिखे, फॉर एग्जांपल ये एक एक्सटर्नल रजिस्टर है, और R क्या है,
इंटरनल रजिस्टर है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सर्किट है, इसमें बैटरी कनेक्ट है, सो बैटरी का रजिस्टर आर है और एक्सटर्नल का रजिस्टर कैपिटल आर। सो अगर हम आर की कुछ वैल्यू लिखे 10 और इसकी वैल्यू 0 लिखे, फर्स्ट केस फॉर एग्जांपल 10 माइनस 0, सो फिर 10 आएगी, 10 टू द पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो 100 इसके साथ हो जाएगी डिवीजन। सो इन फर्स्ट केस अगर आर इस आर से बड़ा है, सो देन वी विल गेट आर माइनस आर की कुछ वैल्यू आएगी हमारे पास, सो इस वैल्यू को हम कहेंगे फॉर एग्जांपल ए, स्क्वायर ले लिया तो फिर हमारे पास वैल्यू आ गया ए। नेक्स्ट केस अगर ये आर इस आर से बड़ा है, सो इन दैट केस वी विल गेट नेगेटिव वैल्यू, लेकिन फिर भी स्क्वायर है तो इसकी भी कुछ वैल्यू आएगी, सो इन दैट केस फॉर एग्जांपल वी कॉल इट व्हाट, हमारे पास वैल्यू आ गई बी। एंड थर्ड केस, सो इन दोनों केसेस में हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाती है जो हमारे पास क्या है, डिवीजन में है। सो 4RR की एक वैल्यू होगी, सो अगर इससे हम इसकी वैल्यू ऐड करें तो ये वैल्यू और बढ़ेगी, ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो अगर डिनोमिनेटर डिवीजन में नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है ये वैल्यू ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब हमारे पास अगर ये अगेन अगर P इज इक्वल टू, दूसरे पेज पर लिख लेता हूँ, हमारे पास असल जो इक्वेशन है हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, P आउट इज इक्वल टू ई स्क्वेयर आर इंटू आर माइनस आर स्क्वेयर, फर्स्ट केस व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, ये आर इस आर से छोटा है, सो वी विल गेट सम वैल्यू ऑफ आर, स्क्वायर लेंगे तो इससे वैल्यू आ गई, फॉर एग्जांपल वैल्यू आ गई क्या, ए वैल्यू आ गई। और बाकी इक्वेशन हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, ई स्क्वेयर आर डिवाइड बाई 4R आर। इन सेकंड केस अगर ये आर हमने ले लिया छोटा इस आर से, मतलब ये आर छोटा हो गया, ये आर बड़ा हो गया, सो स्मॉल नंबर माइनस बिग नंबर इज इक्वल टू सम नेगेटिव नंबर एंड स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर। सो अगेन इस केस में हमारे पास एक नंबर आएगा, इसको हम कहेंगे क्या, बी फॉर एग्जांपल। सो इसमें हमारे पास आ गया ई स्क्वायर आर डिवाइड बाई 4R आर। इन थर्ड केस अगर ये दोनों आर हमारे पास क्या हो गए, बराबर, दोनों आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सो इन दैट केस आर माइनस आर इज इक्वल टू 0, सो 0 टू द पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो इन दैट केस हमारे पास क्या हो गया, ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4R आर। अब अगर हम देखें तो ये तीन इसमें कॉमन है, यानी मत इसको अगर हम x कहें तो ये है x डिवाइड बाई ए, x डिवाइड बाई बी, और ये हमारे पास क्या है, x है। सो अगर हम देखें तो ये वैल्यू बड़ी है इन दोनों से, क्यों, क्योंकि ये दो नंबर किसी दूसरे नंबर पर डिवाइड हो गई है और डिवीजन से नंबर बढ़ते हैं, डिक्रीज नहीं होते, क्योंकि पॉइंट में नहीं है नंबर, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। सो ए और बी की कुछ वैल्यू होगी। सो आपको सिर्फ याद रखना है, इट when internal resistance is equal to external resistance, in that case power output is equal to so what, मैक्सिमम। और वैल्यू क्या होगी, जब स्मॉल आर बिग आर के बराबर होगा तो ई स्क्वायर आर डिवाइड बाई 4R आर, दो आर है, सो 4R आर बनेंगे, या ई स्क्वायर आर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होगा, 4R स्क्वायर, ये आर ये कैंसिल हो गया, सो इक्वल टू 4R। सो अगर स्मॉल आर बिग के बराबर हो या बिग कैपिटल आर स्मॉल के बराबर हो, या इक्वेशन ये बनेगा या इक्वेशन ये बनेगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम पावर आउटपुट। सो अगर आपको कहे कि राइट द इक्वेशन फॉर पावर आउटपुट, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन है, और अगर आपको कहे कि राइट द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट, तो आपको ये वाला मार्क करना है। सो दिस वाज, और ये दोनों मैक्सिमम पावर कब होगा, पावर मैक्सिमम तब होगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। द नेक्स्ट इज हमारे पास क्या है, थर्मोकपल। थर्मोकपल नाम से वाज़ेह कि इसमें कपल होगा, मतलब जोड़ा होगा, किस चीज़ का, टू डिफरेंट मेटल का होगा, एक मेटल ए होगा, एक मेटल बी होगा, और दूसरा थर्मो मतलब हमारे पास टेम्परेचर होगा, यानी हीट होगा। इस केस में मैंने क्या लिया, ले लिया स्पिरिट लैंप ले लिया। सो अगर हम टू मेटल को इस तरह से कनेक्ट कर ले, सारी ये यहाँ पर नहीं है, अगर हम टू मेटल को इस तरह एंड टू एंड कनेक्ट कर ले और इसको यहाँ पर दे एक बल्ब, यानी एक सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस जिससे हम करंट चेक कर सकें। सो हमारे पास दो मेटल्स है, एक ए है और एक बी है, इसको हमने ज्वाइन किया है, तो ये एक जंक्शन ये बन गया, एक जंक्शन ये बन गया। इस जंक्शन को हमने क्या किया,
इस जंक्शन को हमने क्या किया, इसको हमने हीट दे दिया, और दूसरे जंक्शन को हमने क्या लिखा, आइस रखा इस पर, यानी इसको कोल्ड किया। यानी हमारे पास दो जंक्शन होंगे, हमारे पास हॉट जंक्शन होगा और एक हमारे पास होगा कोल्ड जंक्शन। सो यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है या जो हीट प्रोड्यूस होता है वो हीट कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी को, और ये बल्ब क्या होगा, ये हमको लाइट देगा। सो इन थर्मोकपल वी कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ दिस इज कॉल्ड, जो लाइट जो प्रोडक्शन होती है इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फीडबैक इफेक्ट। और जो वोल्टेज प्रोड्यूस होती है इसको हम कहते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ। नाउ द रिजल्टिंग करंट इज कॉल्ड व्हाट, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो इसको करंट को हम क्या कहेंगे, थर्मो इलेक्ट्रिक करंट। तो जो करंट होता है थर्मो इलेक्ट्रिक करंट, ईएमएफ प्रोड्यूस जो होता है थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फीडबैक इफेक्ट। इस थर्मोकपल में क्या होता है, हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल में, इसमें हमारे पास दो मेटल्स होते हैं ए एंड बी, दो जंक्शन होते हैं हॉट एंड कोल्ड जंक्शन। नाउ इन दिस प्रोसेस हीट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हमारे पास इसकी बेसिक्स थे, लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट है हमारे पास, डेट ये यहाँ पर गिवन नहीं है, लेकिन थर्मो ईएमएफ इंक्रीजेज विद टेम्परेचर इंक्रीजेज। ये जो डिफरेंस है डेल्टा टी के, जितनी ये ज़्यादा होगी इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। सो द ईएमएफ प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पर होगी क्या, एक लिमिट होगी, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि इस टेम्परेचर को अब 1000 केल्विन दे दे तो वोल्टेज 1000 गुना ज़्यादा होगा। अगर 1000 होगा, या इसका मतलब ये नहीं कि 2000 टेम्परेचर 2000 पे इंक्रीज कर रहे तो वोल्टेज ज़्यादा होगा। बट टेम्परेचर के लिए एक लिमिट है, एक टेम्परेचर की एक ऐसी वैल्यू होती है जिस पर हमारे पास ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम होता है। सो टेम्परेचर एट विच EMF is maximum, so that temperature is called what, TN। TN मतलब न्यूरल टेम्परेचर। सो ये हमारे पास क्या है, न्यूरल टेम्परेचर। न्यूरल टेम्परेचर हमारे पास वो टेम्परेचर होता है जिस पर जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास मैक्सिमम होता है। नाउ अब हर दो मेटल्स के लिए ये TN हमारे पास क्या होता है, ये TN हमारे पास कांस्टेंट होता है, जो डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर। और ये TN जो खास पॉइंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोल्ड जंक्शन। ये सिर्फ डिपेंड करता है हॉट जंक्शन पे। सो ये हमेशा याद रखना ईटा के लिए, ये सारे पॉइंट्स ईटा के लिए है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये स्पेशल है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोल्ड जंक्शन। अब एक दूसरा TN हमारे पास न्यूरल टेम्परेचर है जिस पर ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगर हम ईएमएफ इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से ईएमएफ इंक्रीज हो जाता है। अब अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करूंगी। सो वो टेम्परेचर जिस पर ईएमएफ की वैल्यू इतनी कम हो जाए कि 0 हो जाए, सो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे इन्वर्जन टेम्परेचर। सो ये याद रखना कि इन्वर्जन टेम्परेचर में हमारे पास क्या हो जाता है, जो ईएमएफ की वैल्यू प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। और एक हमारे पास न्यूट्रल टेम्परेचर है, न्यूट्रल टेम्परेचर जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इस पर जो है ईएमएफ की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम होती है। अब रेजिस्टेंस थर्मामीटर है, ये रेजिस्टेंस थर्मामीटर इज आल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ये बस थ्योरी आप देख लेना, इतना मुश्किल नहीं है। बस अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज विद द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज। दूसरे हमारे पास किरचॉफ्स लॉ है, एक लॉ को हम कह सकते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, और दूसरा लॉ हमारे पास क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब हमारे पास मेनली दो ही सर्किट है, एक को हम कहते हैं व्हाट, सीरीज सर्किट, एक को हम कह सकते हैं पैरेलल सर्किट। अगर हमारे पास 3 रजिस्टर है, सपोज मैंने इस तरह कनेक्ट कर दिया, किस चीज़ से, बैटरी से,
तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक सीरीज सर्किट। नेक्स्ट अगर मैंने इसको इस तरह कनेक्ट किया तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया पैरेलल सर्किट। नाउ व्हाट इफ आई कनेक्ट दिस, अगर मैं ये रेजिस्टेंस इस तरह करूँ 1 2 3, एक बैटरी में यहाँ पर लगाऊँ, एक बैटरी में यहाँ पर लगाऊँ, एक बैटरी में यहाँ पर लगाऊँ और इस तरह मैं सर्किट कंप्लीट करूँ। सो ये सीरीज है या पैरेलल, दिस इज सीरीज और पैरेलल, this is not series not parallel, this is combined circuit, it is a mixture, it is complicated circuit या complicated circuit, हाँ ये नाम सही है, it is complicated circuit। so जो सर्किट ना सीरीज में हो ना पैरेलल में हो और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, सो इसके लिए हम किरचॉफ्स की लॉ यूज़ करेंगे, आइदर KCL और KVL। सो यहाँ पर मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ, एक KCL है एक KVL है। C मतलब करंट, सो करंट किस चीज़ के बराबर है, I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई T। क्यू हमारे पास क्या है, चार्ज, दूसरे में हमारे पास क्या है, वोल्टेज, V इज इक्वल टू W डिवाइड बाई क्यू, और वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो KCL इज बेस्ड ऑन चार्ज एंड KVL इज बेस्ड ऑफ एनर्जी। सो अब KCL किस तरह चार्ज के बराबर है, KCL हमको कहते हैं कि हमारे पास अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू व्हाट, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि हमारे पास एक जंक्शन है, इसमें ये वाला जंक्शन है, इसमें मिक्सचर है, करंट आ भी रही है करंट जा भी रही है। तो नॉर्मली बात है जितना करंट आ रहा है उतना जाएगा भी, तो सर्किट है, इससे तो बाहर निकल नहीं सकती करंट। सो हमारे पास है I1, ये I2, I3, I4, I5। सो इसका मतलब है कि अलजेब्रिक सम क्या होगी, 0 के बराबर होगी, या जितनी करंट आ रही है सम ऑफ करंट इनकमिंग इज इक्वल टू सम ऑफ करंट गोइंग। सो आ कितनी रही है, I1 प्लस I2 आ रही है, और जा कितनी रही है, I3 प्लस I4 प्लस I5। सो दिस इज व्हाट, दिस इज KCL। और इस तरह हम कह सकते हैं पर जितनी आ रही है और जितनी जा रही है साइन अपोजिट करेंगे, इसका मतलब है कि इसका सम क्या होगा, 0 होगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड KCL। अब KVL में हमारे पास क्या होता है, KVL में इतना होता है कि सम ऑफ ऑल वोल्टेज इज इक्वल टू 0। KCL में तो हमने करंट में इतना कहते हैं कि जितना आ रहा है उतना जा रहा है। KVL में क्या होता है, KVL में ये होता है कि जितना हमारे पास वोल्टेज आ रहा है उतना जो रेजिस्टेंस है उतना सारा उसमें खर्च होगा। सो इसका मतलब है कि जितने वोल्टेज हैं हमारे पास V1 प्लस V2 प्लस 3, ये सब किस चीज़ के बराबर होंगे, ये खर्च के बराबर होंगे, या इसको V1 प्लस V2 प्लस V3 माइनस IR2 माइनस IR3 इज इक्वल टू 0। सो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो सम ऑफ IV इज इक्वल टू 0 और सम ऑफ वोल्टेज विल बी इक्वल टू सम ऑफ IR। सो ये हमारे पास क्या है, KVL है। सो अब KVL की सॉल्विंग के लिए जो तरीके हैं उसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ रूल्स हैं। KVL के हमारे पास कुछ रूल है, या KCL की मैंने रूल्स नहीं बताया, इसकी रूल नहीं है, सिंपली एक MCQ तो करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जंक्शन है, इसमें ये करंट आ रहे हैं, एक 1 एम्पेयर करंट आ रहा है, एक 2 एम्पेयर करंट जा रहा है, एक 3 एम्पेयर करंट आ रहा है, एक 8 एम्पेयर करंट जा रहा है, एक 10 एम्पेयर करंट आ रहा है, एक 12 एम्पेयर करंट आ रहा है, एक 14 एम्पेयर करंट जा रहा है। सो पॉइंट व्हाट, पॉइंट अप्लाई द KCL लॉ। सो KCL लॉ का मतलब है कि 1 एम्पेयर करंट आ रहा है, 3 एम्पेयर आ रहा है, 10 एम्पेयर आ रहा है, ये किस चीज़ के बराबर होगा, 2 एम्पेयर प्लस एक हमारे पास हो गया व्हाट, एक अननोन एम्पेयर करंट है, ये जा रहा है, इसको हमने क्या कहते हैं, इसको हमने कह दिया IX। सो I1 1 एम्पेयर आ रहा है, एक 3 एम्पेयर आ रहा है, एक हमारे पास 10 एम्पेयर आ रहा है, सही है। सो 1 3 10, ये सम ऑफ इनकमिंग विल बी इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग। आउटगोइंग कितने हैं, एक 2 एम्पेयर जा रहा है, एक 8 एम्पेयर जा रहा है, एक 12 एम्पेयर क्या है जा रहा है, एक हमारे पास 14 एम्पेयर जा रहा है,
और ये आई एक्स या आ रहा है या जा रहा है, ये आपको फाइंड करना है। सो सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया आई एक्स। सो ये 1 3 10 इज इक्वल टू 13, 2 8 12 14, 14 और 12 26 27 28 28 38 36 प्लस आई एक्स। सो आई एक्स इज इक्वल टू 13 माइनस 36। सो 13 माइनस 36 से यहाँ क्या आता है? सो 36 33 23, सो ये आता है माइनस 23। सो माइनस 23 मतलब का क्या मतलब है? ये वैल्यू मैंने गलत साइड पे लिखी है। सो ये आई एक्स इस साइड पर जब होगी तो ये हमारे पास क्या होगी? प्लस 23। सो ये हमारे पास इसका मतलब है कि 23 एम्पेयर करंट इसमें आ रहा है। सो अगर ये 23 एम्पेयर सपोज इस केस में अगर आ रहा हो, तो अगर हम इस साइड को ऐड करें और इस साइड को ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या होगा? बोथ 36 होगा। सो दिस वाज अप्लाइंग KCL। लेकिन जितने भी MCQs आते हैं वो सारे किस चीज़ पे आते हैं? वो हमारे पास आते हैं किस चीज़ पर? वो आते हैं KVL पर। सो KVL की कुछ रूल्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम एक डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक सर्किट लेते हैं जिसमें हमारे पास हमने क्या किया है? हमने 2 बैटरी लगाई है, सही है। एक बैटरी का जो EMF है वो हम ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 10 वोल्ट। दूसरी बैटरी हमने ली है कितनी? 20 वोल्ट। तीसरी बैटरी हमने ली है, साइन अपोजिट है इसका, लेकिन लिया है कितना? 40 वोल्ट, सही है। इसको हमने कनेक्ट किया है किस चीज़ से? एक रजिस्टर से जो अननोन है। सो हम फाइंड करते हैं व्हाट? हमको फाइंड करना है व्हाट? हमको फाइंड करना है करंट। सो पहले जो बात होगी, पहली क्या होगी? हम डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे, आइदर क्लॉकवाइज और व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज। सपोज मैंने क्या किया? क्लॉकवाइज। अब अगर क्लॉकवाइज जाएंगे इस तरह से करंट आ रही है, इस तरह से जा रही है। सो आपको बीच में क्या मिलेंगे? आपको बैटरीज मिलेंगे। सो बैटरी में अगर आप जा रहे हैं पॉजिटिव से निगेटिव में, अगर निगेटिव से पॉजिटिव में, 2 पॉसिबिलिटीज़ है ना। बैटरी आएगी या तो पॉजिटिव से निगेटिव में हम जा रहे होंगे या निगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे होंगे। सो अराइज इन पोटेंशियल इज टेकन एज पॉजिटिव, मतलब अगर आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो ये आप पॉजिटिव ऐड करेंगे। मतलब कैलकुलेशन में क्या होगा? पहली निगेटिव की तरफ जा रहे हम लेंगे क्या? माइनस 40 वोल्ट। फिर पॉजिटिव की तरफ जा रहे फिर 20 वोल्ट, फिर 10 है तो फिर लेंगे क्या? 20 वोल्ट। सो ये तरीका होगा किस चीज़ के लिए? अराइज इन पोटेंशियल इज टेकन एज पॉजिटिव, ये राइज है ये पॉजिटिव होगा, और ड्रॉप इन पोटेंशियल इज टेकन एज नेगेटिव। सो जो ड्रॉप था मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे तो ये हमने क्या ले लिया? नेगेटिव ले लिया। नेक्स्ट, फॉर बैटरीज द पॉजिटिव एंड इज ऑलवेज हाई पोटेंशियल। सो ये पॉजिटिव हमारे पास क्या है? हाई पोटेंशियल, नेगेटिव लो। सो हाई पोटेंशियल पर जा रही है मतलब राइज आ रहा है, सो राइज पे हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। या सिंपली तरीका क्या है? ये बुक में नहीं है लेकिन ये याद रखें कि जिस डायरेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं, जिस साइन की तरफ वो रखें। मतलब हम नेगेटिव पर जा रहे हैं तो ये क्या हुआ? नेगेटिव। पॉजिटिव पे जा रहे हैं तो क्या हुआ? पॉजिटिव। अगेन पॉजिटिव पे जा रहा है तो क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। अब अगर इक्वेशन आपने सॉल्व किया, आंसर गलत माइनस आया तो आपका डायरेक्शन गलत है। तो सही डायरेक्शन करने के लिए आपको क्या होगा? बाकी कैलकुलेशन सही है लेकिन आप करेंगे कि द डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज के लिए कैलकुलेशन करेंगे, सो जितना आ जाएगा उतना सही होगा। सो दिस इज लेट्स सॉल्व द इक्वेशन। फॉर एग्जांपल सो ये सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस विल बी इक्वल टू सम ऑफ आर पोटेंशियल ड्रॉप। सो सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप क्या है? हमारे पास आई करंट है और आर हमें ना मालूम है। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। सो अगर हमको एक रेजिस्टेंस मालूम होता, करंट मालूम करते तो सही होता। आर की वैल्यू पुट करके हमें आई की वैल्यू मिल जाती, या करंट गिवन होता, रेजिस्टेंस मालूम करते तो यहाँ पर, लेकिन ये तो मैंने सिंपल सा एग्जांपल किया। सो दिस वाज एंड्स हियर।